done. Yes. जी राबिया। जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं सामना कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। जी मिस आयशा, अभी सामना कौन है? ओके, एक सेकंड। असल में वो इन द सेम रूम, सब जस्ट गोना रिक्वेस्ट आमना कि हम अलग चले जाए ताकि एको ना आए बहुत ज्यादा. अच्छा, okay, so I'm just going to briefly introduce you. Obviously, I look after Uni's Connect, and I'm the CEO and founder, and Amna looks after all the marketing stuff. So, when it comes to looking after student body with regards to email marketing, or sometimes you also takes care of, what do we need to do, strategizing stuff for Uni's Connect. So basically, Amna and I were working very closely when it comes to strategizing our stuff, how to streamline it, what to do, making the, sort of, what do we really look at, a couple of things and emerging, kind of work that we want to do when it comes to Uni's Connect. So she works very closely with me when it comes to marketing, particularly. Okay, that's great. That's great. Okay, so ये है कि अब ये हमारी जो मीटिंग है ग्रोथ एंड कंसल्टेशन मीटिंग है, और मैक्सिमम मैंने आपको पहले बताया ही होगा 20 to 30 मिनट्स ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इसकी होगी, ठीक है। और इसमें ये है कि अभी फर्स्टली आप वो चेक भी कर सकती हैं, मैंने आपको एक ड्राइव का लिंक शेयर किया था ग्रुप पे, उसमें कुछ क्वेश्चंस जो है वो फोल्डर में ऐड थे जो कि बिजनेस से रिलेटेड, आपके बिजनेस से रिलेटेड जो है वो उसमें सारी जो है वो क्वेश्चंस मैंने फिल किए हुए हैं। तो अब मुझे उसी के अकॉर्डिंग ही आपसे सारे क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि अभी फर्स्टली मुझे आपके बिजनेस को अच्छे तरीके से जो है वो समझना है कि आपका बिजनेस किस तरीके का है, आप क्या करते हैं, नेचर क्या है आपके बिजनेस की। देन उसके अकॉर्डिंग फिर नेक्स्ट जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो आप ये बताइएगा कि यूनिस कनेक्ट जो है वो किस तरह से पीपल्स को जो है, मतलब लोगों को किस तरह से ऑफर आप लोग क्या करते हैं? ओके, अच्छा, यस फातिमा, आमना ने मुझे थोड़े से क्वेश्चंस आपके, बिकॉज आई वाज बिजी वर्किंग समथिंग, तो आमना जस्ट went through all the questions with me, and she told me ये वाले questions हैं which are expected to respond to today. So पहले तो when it comes to Uni's Connect, देखो Uni's Connect, the name as the name indicates, we're kind of connecting students with the universities abroad. So that is how we came up with the word or the name of the organization being Uni's Connect. And the Z basically means that, of course, it's the Gen Z world, and of course, people would want to make different spellings out of it. So we didn't want to go for UNIS. We want to go for UNIZ instead. Sort of this. Obviously, this is sort of a small story behind putting a name to our organization. So this was how we came up with Uni's Connect. देखिए, Uni's Connect काम क्या करता है? We actually help students जो बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जाना चाह रहे हैं. So our work basically is all around student body. यानी फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट इंटरमीडिएट का है, बाहर जाके, पर्टिकुलरली बाहर जाने से मुराद मेरा, इफ आई हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक, तो मैं खुद एक ब्रिटिश काउंसिल सर्टिफाइड हूँ, तो माय मेजर मार्केट इज द यूके, बट वी आर आल्सो लुकिंग आफ्टर सम पार्ट ऑफ यूरोप, एंड वी विल including US as well. So this is what we do. So we help students in order to make a choice with regards to their career, with regards to what subject they should be choosing. और हम उनके साथ closely काम करते हैं when it comes to deciding the university, when it comes to deciding country, and then going abroad for their higher education. So हमारे जो programs हैं, से we look after all the undergraduate programs in the UK. Let's say अगर हम सिर्फ UK की भी बात करते हैं, तो all programs, undergraduate programs और postgraduate programs, जिसमें masters के programs भी हैं और आपके पास foundation के programs भी हैं. जैसे अगर कोई स्टूडेंट अंडरग्रेजुएट की डायरेक्ट रिक्वायरमेंट को मीट नहीं करता, तो ही कैन ऑलवेज गो फॉर अ फाउंडेशन डिग्री. अगर कोई फाउंडेशन से आगे वाले स्टेज पर है, लाइक इंटरमीडिएट ऑलरेडी कर लिया हुआ है, हाई स्कूल का ग्रेजुएट है, ही इज एलिजिबल फॉर बैचलर्स, yani undergraduate degree in the UK. Somebody who already has an undergraduate degree here is eligible for a master's degree in the UK. Somebody who is already a master's in Pakistan will be eligible for PhD in the UK. So we look after all levels basically. ठीक है. और
हमारा काम सारा स्टूडेंट्स के साथ है. वी डू नॉट लुक स्पेसिफिकली आफ्टर इमिग्रेशन जो कि वर्क वीजाज और इस तरह की चीजें हैं. हमारा सारा काम स्टूडेंट वीजाज पर है. सो वी जस्ट डोंट हेल्प स्टूडेंट्स विद आइडेंटिफाइंग द कोर्स, वी आल्सो हेल्प देम टू पुट अप एन एप्लीकेशन फॉर वीजा एज वेल. सो हम वीजा एप्लीकेशन भी स्टूडेंट्स की उसी कोर्स के हिसाब से उसी कंट्री के लिए डालते हैं फॉर देम टू एक्चुअली हैव अ फाइनल पैकेज फ्रॉम अस. ओके, मतलब उसमें वीजा भी जो है वो उसी पैकेज के अंदर जो है वो आप उनको सर्विस देते हैं. Yes. Okay. And of course, if somebody has the offer already, किसी ने already खुद apply कर लिया या किसी XYZ consultant के through apply कर लिया, and they're not very satisfied और वो चाह रहे कि हमसे post application support ले ले, तो we have a custom package for post application support as well. एक हमारा है fully कहते हैं ना full fledged package for that is included, like the complete service package. And then we also have customized packages for people who want to go for, जैसे आपने खुद भी सोचा होगा कभी कि कोई बच्चा अगर स्कॉलरशिप से रिव्यू करवाना चाह रहा है, वो चाह रहे हैं हम उसको सिर्फ स्पेसिफिक स्कॉलरशिप पर हेल्प करते हैं या हम उसको बिल्डिंग पर हेल्प करते हैं. सो वी नॉट जस्ट, सो बेसिकली हमारा काम इज ऑल अबाउट स्टडीइंग अब्रॉड. And then, of course, we're not very specific in terms of just sending people across. We're very invested in students' careers as well, because it's a very, of course, you already have another question, but I'd like to answer how personal it is to me. But ये हमारा सारा काम है when it comes to profile building as well. हम students को CVs पर, LinkedIn profile पर, अपनी personal statement को कैसे manufacture करना है, how to start off with the process. वो बहुत overwhelming सा process है, कौन सी यूनिवर्सिटी देखें, कहाँ जाएं, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए. So from the beginning to the end. Okay, तो what inspired you most, मतलब ऐसी क्या चीज आपको जो है वो इंस्पायर्ड की जिसकी वजह से आपने ये यूनिस करेक्ट जो है वो स्टार्ट किया? कोई एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी अगर आप मुझे बताएंगी कि कब हुआ और किस तरीके से जो है वो आपने इसको स्टार्ट किया, थोड़ा सा हिस्ट्री जो है वो मुझे बताइएगा पीछे अपनी. Okay, so I'd say ये मेरी बहुत एक personal journey है, Rabia, and when I say कि Unis Connect is very personal thing to me, it actually is what I mean, because मैं खुद एक engineer हूँ, मैंने अपनी engineering की थी UET लाहौर से, and I remember when I was an 18-year-old or maybe a 20-year-old, I had nobody to guide me whether this is the right platform for me, whether this is the right course for me, whether I need to take some time to think about the course or to think about the course or the curriculum, or maybe the career that I want to pursue. So I missed that element in my life. And when I was in my second year, because I took upon a very hard kind of subject as well. So I did engineering in, I did my bachelor's in chemical engineering back in I was a graduate of 2016. So जब मेरी अपनी journey start हुई, of course, when I got in, I got good grades. I got into this particular institution as well. While it was a proud moment for everybody else, I did not really enjoy the subject. So back in my second or third year, when I realized this, so I realized it pretty quickly. I always wanted to invest in other skills ताकि मैं उस चीज को आगे pursue कर सकूं जो मेरा passion है, and I could identify it while I'm an undergraduate student. So when I graduated, I was sure that I do not, but other of my classmates were very happy going for a master's degree. वो जो पाकिस्तान एक ट्रेल चलता ही आ रहा है, bachelor's कर लो, अगर कुछ और workout नहीं करा तो चलो जी master's कर लेते हैं, अगर master's कुछ और workout नहीं करा तो चलो जी आगे आप PhD कर लेते हैं. I did not want to do that because I do not think it's the right way to think about things in your life. So I did not do my master's because I was not sure about the field. I was particularly confident that I do not want to pursue engineering anymore. So that was a time when I actually hit this thing, I really want to do something else. I was good with communication, I was good with students, I was good at counseling. So मैंने फिर उसको वहाँ से start किया. अच्छा, अब of course I was when I graduated, of course sometimes हम पाकिस्तानियों के mindset वो नहीं होता where we have a very clear career path. So I actually landed my first job as a student support officer. Well, that was my beginning into this particular field. फिर I enjoyed it so much that I spent like 7-8 years here. ठीक है, अब मुझे 8 साल हो गए हैं, of course, लेकिन I was in my 7th year when I decided to launch Unis Connect because I figured out कि इस सारी फिर जब मैंने इंडस्ट्री का एक्सपोजर ले लिया, मुझे समझ आ गई कि the idea that I had back then is still there. कि अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको कोई आइडिया नहीं है कि what they're doing, जिनको कुछ पता नहीं है,
फॉलोइंग दिस आइडिया बिहाइंड कि उनका XYZ कजन चला गया है तो भाई अब हमने भी जाना है, उनकी सेट फैमिली सेट हो गई है, अब हमने भी जाना है, हमने जाके पैसे कमाने हैं, हमने घर पे set करना है सब चीजों को. सो आई वांटेड टू कम इन बिटवीन द सिस्टम एंड ओपन वैल्यूज फॉर, इससे भी ना हो कि आप ये समझो कि बस ये हमारी रिटर्न ऑन मनी हो जाएगा जी, हमें बहुत अच्छी डिग्री, हम वहां चले जाएंगे. It's also about what degree will you be doing, what career do you offer. So that was the entire story behind launching Unis Connect, because I did not want to launch anything without prior experience. I wanted to have significant experience of the industry to see कि बच्चों को क्या problems हैं, यानी students का interest है तो वो किस side पर जा रहे हैं. And when I figured that out, I felt that now it was the requirement for us to start helping other students as well when it comes to deciding the university, when it comes to deciding the budget, when it comes to going abroad as well. That's great. Okay. To what kind of people usually reach out to you? Any age group or background you see most? आपको ज्यादा जो है वो के बैकग्राउंड से जो है वो मोस्टली किस एज के जो है वो आपके पास आते हैं? लाइक होता है कि ज्यादा आपके पास आ रहे हैं या तो मास्टर्स के, अभी तक जब से आपने यूनिस कनेक्ट को जो है वो शुरू किया हुआ है तब से अब तक आपके पास ज्यादातर टारगेट ऑडियंस कौन सी है? ज्यादातर मेरे पास मास्टर्स के स्टूडेंट्स आ रहे हैं और ज्यादातर अभी तक हमने एप्लीकेशंस भी मास्टर्स की हैं. सो वो बच्चे जो कि अंडर ग्रेजुएट या तो कंप्लीट करने वाले होते हैं, लाइक इस साल हमारे पास वो स्टूडेंट्स हैं 4-5 जो कि अंडर ग्रेजुएट की डिग्री को कंप्लीट कर रहे हैं, लाइक देयर इन द फाइनल सेमेस्टर. ठीक है, यानी they will be graduating and then they have plans to move immediately abroad for their masters. And these are very, यानी इन बच्चों के साथ काम करके मजा भी इसलिए आता है because they're dedicated students. इसमें हमारे पास सबसे ज्यादा एप्लीकेशंस आती हैं अब मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए जो कि अपना अंडर यहाँ से कर लेते हैं, because of course it also makes sense when it comes to budget analysis, when it comes to expenses. अंडर ग्रेजुएट डिग्री बाहर जाके करना एक्सपेंसिव होता है, 4 साल की डिग्री है, 3 साल की डिग्री है, डिपेंडिंग ऑन द कंट्री. लेकिन जब हम मास्टर्स की बात करते हैं तो यूके में मास्टर्स 1 साल का ऑफर हो रहा है, कुछ और जगहों पे 2 साल का ऑफर. ऑफ कोर्स आपका एक्सपेंस कट डाउन कर जाता है, तो मैक्सिमम एप्लीकेशंस ज्यादातर हमारे पास मास्टर्स की आती है. ओके मास्टर्स की होती है और कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि अंडर ग्रेजुएट के भी होते हैं, बट ऑफ कोर्स द मैक्सिमम इज फॉर मास्टर्स. एंड इफ आई हैव टू स्प्लिट तो एज उतना तो हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं बिटवीन 20 to 30 इयर्स, यानी जिसमें कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो अपनी अंडर ग्रेजुएट कंप्लीट प्रोसेस करते हैं, यानी देयर इन द सेकंड ईयर, तो देयर समवॉट बिटवीन 21. एंड अगर हम बात करते हैं उनके जिनके 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस होता है, उसके बाद वो मास्टर्स के लिए जाना चाह रहे हैं, तो दैट इज बिटवीन 30-35 एज वेल. सो हमारा जो मैक्सिमम टारगेटेड आता है स्टूडेंट आता है वो आता है बिटवीन 20, इफ आई हैव टू गिव यू अ ब्रॉडर रेंज, बिटवीन 20 to 40. ये ब्रॉडर है, बट अगर इसमें भी हम स्पेसिफाई कर लेते हैं दैट इज बिटवीन 20 to 30. ओके ऑफ एज. ओके तो जब कोई भी आपके यूनिस कनेक्ट के बारे में फर्स्ट टाइम सुनता है कि आपका यूनिस कनेक्ट का जो है वो काम चल रहा है और आप ये सर्विसेज देते हैं इस तरीके से, तो आपको क्या लगता है कि उनका फर्स्ट इम्प्रेशन क्या होता होगा कि आप उनके लिए क्या जो है वो सबसे अच्छा प्रोवाइड उनको कर सकते हैं? मोस्टली जो है वो फर्स्ट इम्प्रेशन उनका क्या होता होगा आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? आप यानी आप जानना चाह रहे हो कि अगर कोई क्लाइंट मेरे पास आता है या कोई स्टूडेंट आता है तो उसका फर्स्ट इम्प्रेशन क्या होगा? अच्छा देखो, जनरली स्पीकिंग द काइंड ऑफ इम्प्रेशन दैट आई वांट टू लीव वो ये होता है कि एक स्टूडेंट के जितने क्वेश्चंस हैं ना वो हम आंसर करेंगे. यानी जैसे अभी आप हमारे साथ एक कॉल कर रहे हो जो कि एक इंट्रोडक्टरी कॉल है, ग्रोथ कॉल जिसको आप कह रहे हो, वे कि मेरे क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आप अपनी चीजें बताओ. बिल्कुल यही चीज मेरे 1 साल से काम में रही है, जहाँ पर वी सेंड आउट इनवाइट्स टू स्टूडेंट्स, जहाँ पे वी गिव this opportunity to connect with me for about 20 minutes, 30 minutes free of charge. We don't charge. I don't charge my student for the first session. ठीक है, अभी तक मैंने नहीं चार्ज किया. ऑफ कोर्स कुछ मेरे स्टूडेंट जो पुराने हैं वो कहते हैं कि आपको चार्ज करना चाहिए, because why are you doing this work? Nothing. But I say this to them कि it is also about developing a connection with the student. So the first impression that I want to keep and I want to leave most specifically वो यही है कि I want them to feel secure. I want them to know
that there is somebody who has the back. There is somebody that they can rely on completely when it comes to their career objectives as well as study abroad plans. I want them to feel, I don't want them to feel too overwhelmed and overpowered by this entire application. I want them to feel that this is just halwa, hum aaram se kar lenge. Because देखो, I'm not that sort of a consultant who would eventually just say, आप पैसे दें, अपने documents दें, and you're good to go. No, we don't work like that. That's not my work ethic. My work ethic is, let's डू यू decide. थिंक कि आपको मतलब इस तरह लगता हो कि जैसे आप कह रही हैं कि अभी जो है वो हम चार्ज जो है वो फर्स्टली नहीं करते, कोई भी क्लाइंट आता है हमारे पास तो फर्स्टली हम उससे जो है वो कोई भी चार्जेस नहीं लेते जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो कोई ऐसी मतलब है और ऑर्गेनाइजेशंस वो लेती हैं, मतलब चार्ज करती हैं इस चीज का? अच्छा, देखो, मैं सिर्फ अपना फर्स्ट सेशन चार्ज नहीं करती। लाइक द फर्स्ट मीटिंग दैट वी हैव वाया कॉल हो जाए, या कभी कभी एक दो मीटिंग्स भी अगर मेरे स्टूडेंट के, मुझे लग रहा है कि स्टूडेंट कंफ्यूज्ड है, वो ऑनबोर्ड होना चाह रहा है लेकिन उसको भी कुछ कंफ्यूजन आ रही है, तो मैं उसका सेकंड कॉल भी फ्री ऑफ चार्ज कर लेती हूँ, एज लॉन्ग एज आई एम हैप्पी टू एड्रेस द क्वेश्चंस, ठीक है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू स्टार्टिंग द प्रोसेस, वी डोंट डू इट फ्री ऑफ चार्ज। वी हैव अ कस्टमाइज्ड पैकेजेस, ठीक है। हमारा सर्विस पैकेज होता है जो कि स्टूडेंट को लेना पड़ता है। वी हैव केप्ट इट एट अ लो प्राइस ताकि स्टूडेंट्स को भी मुश्किल ना लगे, एंड वी आल्सो कैन मेक इंस्टॉलमेंट व्हेन इट कम्स टू प्लान्स। अगर मुझे कोई स्टूडेंट ऐसा लग रहा है कि जेन्युइन स्टूडेंट है, ही वांट्स टू स्प्लिट द पेमेंट, तो वी डू दैट। बट इफ आई हैव टू आंसर द क्वेश्चन कि कोई और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पैसे नहीं ले रहे हैं, तो देखो बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि पैसे लेती हैं फॉर कंसल्टेशन। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द फर्स्ट सेशन। फर्स्ट सेशन वो अक्सर का नई लोग चार्ज करते हैं व्हेन इट कम्स टू, जैसे आप लोग भी नहीं कर रहे हो, जैसे हम भी नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। बिकॉज फर्स्ट सेशन अगर हम चार्ज कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली हम, वो एक होता है ना कि आपका 10 साल का एक्सपीरियंस हो जाए, आपने एक इंडस्ट्री को बिल्ड कर ली है, फिर एक समझ आती है कि भाई अब आप अपना फर्स्ट सेशन चार्ज कर रहे हो। अब भी फिलहाल सिंस वी इन द फर्स्ट ईयर एंड इट्स जस्ट लाइक वन ईयर, 1.5 year टू यूनीज कनेक्ट, आई डोंट वांट कि हम इसको इतना जल्दी लॉन्च करें कि इट जस्ट मेक्स नो सेंस कि स्टूडेंट्स को लगे कि वी जस्ट हैव टू सॉर्ट ऑफ बुक अ कॉल विद देयर। हाँ, व्हेन स्टूडेंट वुड वांट another section, for example एक introductory call ये was detailed, वो 30 minutes की, 40 minutes की थी, क्वेश्चंस कंसर्न्स हो गए, आंसर हो गए थे, उसके बाद वो अब आपसे एक और कंसल्टेशन सेशन लेना चाहे, दैट इज गोइंग टू बी पेड, ठीक है। ये मैं पेड, बिकॉज व्हेन इट कम्स विद माय टाइम एज वेल, बिकॉज एक तो मैंने कर लिया ना वो जो स्टूडेंट की सेटिस्फैक्शन के लिए था, बट नाउ दिस हैज टू, इफ ही वांट्स टू डिग मोर एंड इफ ही वांट्स टू, and it's not something that the student is really planning to go for the same year, then I will charge my session for my time, ठीक है। दूसरी चीज है कि इंडस्ट्री में, यानी हमारी इंडस्ट्री में कुछ ऐसे बड़े नाम हैं भी जो कि फ्री ऑफ चार्ज भी काम कर देते हैं, बिकॉज दे गेट पेड बाय द रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज ऑन प्रोड्यूसिंग नंबर्स। सो दिस इंडस्ट्री, इसमें हम ना, हमारी जो रेवेन्यू जनरेशन है ना, वो बहुत डिफरेंट तरीके से होती है। बट व्हेन इट कम्स टू द काइंड ऑफ वर्क दैट आई डू, बिकॉज आई डू नॉट गो आफ्टर numbers precisely, my work is with students, for students, and for the betterment as well. So I definitely charge my students for the kind of service that they are looking for and the kind of service that I'm giving to them. So यानी अभी इसलिए जो मैंने आपको बताया, ये भी बहुत थोड़े लोग हैं जो कि बिल्कुल चार्ज नहीं करते फॉर देयर सर्विसेज, बट लाइक 80% ऑफ देम वुड इवेंचुअली चार्ज, बिकॉज अगर आप चार्ज नहीं करते तो स्टूडेंट का भी इंटरेस्ट नहीं होता, वो भी बहुत हद तक नॉन सीरियस ही रहता है, उसको लगता है कि जगह से कहीं ना कहीं सर्विस ले सकते हैं। ओके, तो क्या चीज ऐसी है जो कि आपकी यूनिस कनेक्ट में डिफरेंट है बाकी ऑर्गेनाइजेशन से? ऐसी कोई सिमिलर कोई हो, ऑफर हो जो कि आप उसे उनको प्रोवाइड करते हैं और बाकी जो है वो इस तरह की चीज प्रोवाइड नहीं करते, तो कोई चीज ऐसी? सॉरी, आपकी लास्ट लाइन में मुझे समझ आई। कोई, मतलब यही मैं कह रही हूँ कि ऐसी कोई चीज डिफरेंस उनमें है आप में और उनमें, कि जो आपके कंपेटिटर्स हैं और जो आपके मतलब यूनिस कनेक्ट के साथ ही जिस तरह की आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसी तरह की किसी भी और ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं आप भी ऑलमोस्ट जो है वो वही सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, लेकिन ऐसी कोई सर्विस जो बाकियों से बिल्कुल डिफरेंट हो, वो आप मुझे बताइएगा कि कौन सी सर्विस ऐसी है जो आप डिफरेंट बाकियों से जो है वो कर रही हैं, दे रही हैं लोगों को? देखो राबिया, हमारा जो काम है ना वो मोर और लेस सेम है, और अब आपको शायद, आई एम श्योर यू वुड नो एज वेल कि
कंसल्टेंट्स अब इतने ज्यादा आ गए हैं कि हर एक को लगता है कि वो अपना कंसल्टेंट खुद ही बन गया है, एंड दैट दे कैन एक्चुअली हेल्प अदर पीपल गो अब्रॉड एज वेल, अगर उन्होंने किसी एक बंदे को हेल्प कर दिया तो। आई थिंक द यूनिक थिंग दैट वी हैव इज दैट वी आर वेरी पर्सनली इन्वेस्टेड इन द स्टूडेंट्स। सो इसमें अभी क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन अभी छोटी है, तो ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि एक काउंसलर है उस पे ना कोई चेक एंड बैलेंस है, ही इज डूइंग व्हाटएवर ही वांट्स टू डू, और वो स्टूडेंट को नंबर्स प्रोड्यूस करके दे रहा है फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। सो एट द मोमेंट व्हाट वी रियली डूइंग इज वी आर डूइंग कस्टम वर्क, यानी हम अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट काम कर रहे हैं। इट्स नॉट जस्ट according to whatever we getting. So for example, I have seen in my work and in my industry, and this is what amazes a lot of people around me. जब मैं उनसे यानी मैं पार्टनर से बात भी करूंगी तो वो थोड़े से होते हैं हैरान इस बात को भी लेके, ऐसी यूनिवर्सिटीज पे बच्चों को क्यों गाइड कर रहे हो जहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिल रहा, you know? So we do specialize. हमारी स्पेशलिटी ये है कि हम स्टूडेंट को रसल ग्रुप यानी आईवी लीग के जैसे कहते हैं ना, यूनिवर्सिटीज आ जाती है, टॉप यूनिवर्सिटीज जिन पर एडमिशन लेना मुश्किल है, जिस पर स्टूडेंट्स का माइंडसेट को प्रिपेयर करना मुश्किल है, जिस पर एक एप्लीकेशन टाइमलाइन सेट करना मुश्किल है, ऑफ कोर्स वो सारी चीजों पर इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर वी गेटिंग पेड और नॉट, वी गाइड आवर स्टूडेंट्स। ठीक है, जैसे इसी साल मैंने इस साल 3 एप्लीकेशंस लाहौर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की सबमिट की हैं, जिसमें से आई लेट्स द स्टूडेंट एंड decides to go for this particular university, I am not going to be getting paid to for the student by anything. Like for example, एक होता है ना जो आपको एक स्टूडेंट की तरफ से कमीशन मिलता है, एक तो मेरा चार्ज हो गया ना, and that's the only money that I'm taking from the student for the kind of work that I'm doing for him and the effort that I'm putting ahead. एक होता है जब यूनिवर्सिटी हमें पेमेंट करती है for the services and everything else that we're doing, that's another stream of revenue as well. But हम for those universities, so there's like list of universities जहाँ पे you don't get paid. ठीक है, but we don't take that into consideration. If we see that the student is good enough and he has the university in his mind and he can apply for that university, irrespective of whether we get paid or not, we do not go after this particular thing कि हमें कमीशन आएगा तो ही हम स्टूडेंट को एप्लीकेशन सबमिट कराएंगे, अदरवाइज हम करवाते भी हैं और उसके लिए हम बहुत ज्यादा चार्ज भी नहीं करते। और हम स्टूडेंट अगर फाइल में फॉर एग्जांपल इफ ही रियली इज इंटरेस्टेड इन परसुइंग दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, वी डू नॉट वांट टू चेंज हिज माइंड. So that is one thing, of course, that we're doing. And I know as a matter of fact, a lot of people are not doing this because they just want to produce numbers for those जहाँ पे उनको सबसे ज़्यादा benefit आ रहा है. Because at the end of the day, it's also the contract with the universities. ना हम universities के साथ उस तरह से काम नहीं ना करते, हमारा है free hand. हम ये करते हैं कि हम प्रोफाइल देखते हैं, we do our research. And then, for example, if I have like my trusted partners, तो मैं उन trusted partners के साथ application tag करा देती हूँ, ठीक है? But of course, this is not something that is very specific, क्योंकि बहुत सारी ऐसी universities होती है जिस पर आपकी कोई tagging नहीं बनती है. So, for example, if I talk about the top 5 universities in the UK, जिसके आपके कोई agents नहीं होते, जिसपे आपकी कोई tagging नहीं होती, it's a student application that is to be submitted, and we help students with that as well. So, एक तो हम साइशा की तरफ काफी signal issue आ रहा है. Can you hear me now? जी, बीच में आपकी आवाज जो है वो बहुत कम हो जाती है. आई थिंक कनेक्शन इशू है उधर, सिग्नल इशू है. जी जी, अब आ रही है. अच्छा, मैं आवाज थोड़ी सुनची भी कर देती, सो यू कैन लिसन टू व्हाटएवर आई एम सेइंग. सो मैं बस थोड़ा सा रिफ्रेश कर, आ रही है आवाज? जी जी, आ रही है. ओके, सो मैं थोड़ा सा रिआइट्रेट कर देती हूँ कि सो दिस इज वन थिंग दैट वी डूइंग. एंड इसके अलावा भी एक जो काम मुझे लगता है कि हम कर रहे हैं, अ लॉट ऑफ पीपल आर नॉट डूइंग, वो ये है कि हम स्टूडेंट के साथ एक कस्टम शीट शेयर करते हैं. दिस इज पार्ट ऑफ आवर पैकेज. खासकर वो हमारे स्टूडेंट्स जो कि अच्छी यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर रहे हैं, जिनका बजट अच्छा है, दे वांट टू मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन, हम उसके लिए एक एक्स्ट्रा सर्विस इंट्रोड्यूस करते हैं जिसमें हम स्टूडेंट को वो ऑप्शंस देते हैं. एंड देन दे डोंट रियली हैव टू वरी अबाउट गोइंग ऑनलाइन लुकिंग फॉर ऑप्शंस देमसेल्व्स, थिंकिंग कि whether this. और हम सारी, अच्छा एक और चीज जो कि आई फील लाइक अ लॉट ऑफ पीपल आर नॉट डूइंग, अगेन हम कर रहे हैं, वो ये है कि हम स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स पर भी गाइड कर रहे हैं. सो वेदर इट्स फुली फंडेड स्कॉलरशिप, बिकॉज देखो ये वो सारी चीजें जिसपे हमें कुछ आता नहीं है, यू नो, बट वी स्टिल हैप्पी टू बाय व्हाटएवर सर्विस. हम सिर्फ सर्विस चार्ज करते हैं अपनी, ठीक है. एंड इवन इफ वी नॉट गेटिंग पेड फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन इटसेल्फ, तो भी हमारा गेन ही होता है. इफ द स्टूडेंट मेक्स इट, लेट्स जस्ट हेल्प हिम, ठीक है. ऑफ कोर्स आपके सर्विस पैकेजेस डिफरेंट होते हैं, बट दीज आर काइंड ऑफ थिंग्स दैट आई फील दैट वी आर डूइंग इन आवर वर्क एंड नॉट एवरीबॉडी एल्स इज डूइंग. अगर कर भी रहे हैं तो बहुत थोड़े लोग कर रहे हैं.
ओके, तो क्या मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन होता है कॉमन क्वेश्चन जो कि मोस्टली क्लाइंट जब आते हैं तो आपसे क्या चीज डिस्कस करते हैं बिफोर डिसाइडिंग कि उनको जो है वो क्या चीज करनी चाहिए, तो उससे पहले उनका कॉमन क्वेश्चन क्या होता है जो मोस्टली क्लाइंट्स करते हैं आपसे? सबसे पहले तो यही होता है कि व्हाट बजट इज रिक्वायर्ड, मुझे कितने पैसे हम्म, चाहिए। उसके बाद ये होता है कि ऑफ कोर्स विद कंट्रीज आर यू डीलिंग विद एंड व्हाट्स द वीजा रेशियो फॉर ईच कंट्री, हम उस पर बात करते हैं। फिर बर्निंग क्वेश्चन ये होता है स्टूडेंट्स का ज्यादा कि व्हाट डॉक्यूमेंटेशन इज रिक्वायर्ड, हमें आईएलटीएस देना है, पहले देना है, बाद में देना है, कि नहीं सबमिट द एप्लीकेशन हम्म, हम्म, IELTS सबमिटेड विद IELTS। सो ये सारी चीजें होती हैं। ऑफ कोर्स ये वाले हम्म, क्वेश्चंस होते हैं, और उससे बढ़ के भी कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस होते हैं कि जैसे अब फॉर एग्जांपल हमारी प्रेजेंस लाहौर में है, ठीक है। अब हम्म, कुछ हमारे कंसल्टेंट्स हैं यानी कंपेटिटर्स ऐसे हैं जिनके मल्टीपल ऑफिसेज हैं, ठीक है। अब वी हम्म, हैव प्रेजेंस इन लाहौर। अब हमारे पास जितने भी पाकिस्तान में के अक्रॉस सिटीज हैं, सॉरी, जिसमें हमारे पास कराची आ जाता है, इस्लामाबाद आ जाता है, फैसलाबाद आ जाता है, ऑफ कोर्स वी डोंट हैव आवर प्रेजेंस देयर, ठीक है। हम्म, आई वांट कि हमारी ऑनलाइन प्रेजेंस इस तरह से रहे कि लोगों को पता चले ज्यादातर। सो जो लाहौर में होते हैं वो तो दे कैन कम एंड मीट अस एज वेल। सो जो नहीं लाहौर में होते हैं उनको हम ऑनलाइन कंसल्टेशन देते हैं, यानी हमारी सारी हम्म। ऑनलाइन। मोस्टली आपको कहाँ से जो है वो अप्रोच करते हैं, थ्रू इंस्टा और थ्रू वेबसाइट, मतलब आपकी वेबसाइट है? वेबसाइट मेरी है राबिया, लेकिन वेबसाइट इस वक्त डाउन है। मैंने वेबसाइट जी बनवाई, जी जी जी, आपने बताया हाँ, था। मैंने आपको बताया था, उसमें ना कोई पता नहीं हम्म, बग है या वर्डप्रेस का कोई प्रॉब्लम आया है जिसकी वजह से द वेबसाइट इज डाउन, एंड आई एम रियली वरीड अबाउट दिस ऑफ कोर्स, एंड दिस इज माय टारगेट कि उसको हमने सेट भी करना है और उसको हमने वी वांट टू ब्रिंग इट बैक टू हम्म, रन। हम्म, लेकिन जो हमारे पास स्टूडेंट्स ज्यादातर आते हैं दे आर फ्रॉम अक्रॉस पाकिस्तान। अच्छा नहीं, ज्यादा आपका क्वेश्चन ये था कि आते कहाँ से हैं आप हम्म, ज्यादा। हाँ, हम्म, देखो रेफरेंस ज्यादा है मेरे पास इस वक्त, जिनका true एक्सपीरियंस reference, है। हाँ, हम्म, जिनका एक्सपीरियंस हो, बिकॉज अभी आई फील यही तो गैप है जो मुझे लगता है कि मार्केटिंग में हमारी है। बट हम्म, अभी तो मेरे पास ऑनबोर्डेड क्लाइंट्स हैं, दोज आर मोर लाइक माय रेफरीज, यानी जिसको कहते हैं कि एक मेरा स्टूडेंट है जिसको मैंने हम्म, भेजा, उसने एक दो और स्टूडेंट्स को रेफर कर दिया कि वी हैड अ गुड हम्म, एक्सपीरियंस विद हर, व्हाई डोंट यू जस्ट ट्राई हर। तो हम उन्होंने फिर किसी के साथ ऐसा एक्सपीरियंस हो, उसने आगे हम्म, दो और रेफर कर दिए। तो अभी तक जो ज्यादातर है वो वर्ड ऑफ माउथ है। और कुछ हम्म, सकते हो कि ऐसा है जिसमें ईमेल मार्केटिंग से हमने एक दो स्टूडेंट्स को कन्वर्ट किया है थ्रू ऑफ कोर्स, पहले ईमेल भेजी, उसके बाद वी वर एबल टू गेट हम्म, कॉल, और हमारी सारी चीजें वहां से स्टार्ट हुई, एंड देन ऑफ कोर्स वी वर एबल टू क्लोज वन और टू स्टूडेंट्स देयर। इसमें मुझे वो एक चीज याद आ गई है। आपने आई थिंक वो मूवी देखी होगी कि नहीं देखी होगी, बट मुझे उस मूवी का ना एक डायलॉग याद आ गया कि जिसमें वो कहते हैं कि ये अब आपको मैंने बताया तो आपने आगे अगले 3 बंदों को जो है वो बताना है। हाँ, आई नो। वो मुझे ये एक डायलॉग याद आ गया आपकी, ये जैसे मतलब रेफरेंस बेस्ड है कि एक आता है तो देन वो अगले बंदे को जो है वो कहता है कि आप जो है वो ये वाली मतलब बिजनेस जो कर रहे हैं यूनिस कनेक्ट, इनके पास आए, ये अच्छा कर रहे हैं, इस तरह से करके जो है वो आपके पास मोस्टली जो है वो अप्रोच करते हैं आपको। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की अच्छी स्टोरी हो ना, कोई फॉर एग्जाम्पल, चले हम अभी आपकी बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम्म, अगर मुझे से लगता है कि वी मेक अ गुड टीम, वी कैन वर्क अराउंड टुगेदर, इफ आई रियली हैव अ वेरी गुड एक्सपीरियंस विद यू, ऑफ कोर्स आई वुड, इफ समबडी आस्क्स मी, मैं उनको कहूंगी हाँ मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, तो व्हाई हम्म, डोंट यू ट्राई देम, ठीक है। एक जो बंदा हम्म, एक होता है आप ऑनलाइन जाके किसी इंसान को सर्च करते हो, एक वो बंदा हम्म, होता है जिसको कह देते हैं ना कि यार ये अच्छे हैं, मैंने इनको एक्सपीरियंस किया था, खुद दे हैड अ गुड स्ट्रैटेजी, बिल्कुल व्हाटएवर, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो ऑटोमेटिकली बंदे के ना आधा काम खत्म हो जाता है, वो जाके भी नहीं देखता कि भाई अब मेरे साथ ऐसा हुआ है। मैंने अभी यूनिस कनेक्ट को इट वाज इन द मिडिल, यानी मैंने अभी इसकी प्रॉपर रिफाइनिंग भी नहीं की हुई थी, अभी मैं सिर्फ सोच रही थी नाम वगैरह रखने का। आई हैड अ स्टूडेंट जो मेरी लास्ट वर्क प्लेस पर था, और हम्म, ऑब्वियसली आई वाज बाउंड कि मुझे उसको नहीं कैरी फॉरवर्ड करना, बिकॉज आई वाज प्लानिंग टू लीव द हम्म, ऑर्गेनाइजेशन। बट व्हाट ही डिड वाज, व्हाई मेरे पास उसका कुछ भी नहीं था राबिया, यानी मैंने ना ऑर्गेनाइजेशन खड़ी की थी अभी, ना मेरा कोई नाम था, हम्म, ना मैंने भी कुछ सोचा हम्म, था। But that student approached me and he said, "Ma'am, whatever it is, I don't mind. आप मुझे ना मेरे यानी अपने ओन पे कर ले, फ्रीलांस कर ले, और मैं आपको I will pay you for the services, and let's just continue with that." और वो मेरा यानी आप सोच रहे जैसे February 2024 है, मैंने अभी दिसंबर में मैं यूनिस करने के बारे में सोच रही थी, और मैंने फरवरी में फर्स्ट स्टूडेंट भेज भी दिया था। सो बताने का मकसद ये है कि दिस वाज नॉट माय स्ट्रैटेजी, मैंने कोई काम नहीं हम्म, किया, इट वाज आल्सो, इट वाज जस्ट द कंफर्ट ऑफ द स्टूडेंट।
और उसी ने मुझे एक और स्टूडेंट रेफर किया जो मैंने उसी ईयर, यानी अभी मैंने ऑफिस भी नहीं लिया हुआ था प्रॉपर तरीके से, मैंने उसी ईयर एक मे में भी स्टूडेंट भेज दिया। आप समझ रहे हो? सो वर्ड ऑफ माउथ फॉर मी वाज द, and this was something that when I was working alone, like I didn't have a team, I was not working with anyone else, यानी ये मैंने अपनी ओन पर बहुत थोड़ी प्राइस पे आपके तो कि मैंने स्टार्ट किया और मैंने कहा कि नो लेट्स जस्ट गेट डाउन विद दिस वन बिकॉज़ अगर कोई आ रहा है व्हाई नॉट। ओके, तो मोस्टली जो फैमिलीज होती हैं वो किस तरह से मतलब कंफर्टेबल और कंफर्ट महसूस करती हैं, या ट्रस्ट आप पे जो है वो उनको आता है कि यूनिस कनेक्ट में हम आए हैं तो हमें ट्रस्ट है इस चीज का कि हमारे साथ जो है वो कोई स्कैम नहीं होगा या कोई और चीज, उनका ट्रस्ट किस तरह से आप बिल्ड करते हैं? I think through my conversation, through my communication, जहाँ पे मैं उनको ये बता देती हूँ, और प्लस बिल्ड करने का हमारे काम में ना ये फायदा थोड़ा सा है कि बिल्ड, अगर मुझे स्कैम करना पड़ेगा ना तो मुझे बहुत एफर्ट लगानी पड़ेगी, यानी मुझे एक फॉल्स ऑफर लेटर लेकर आना पड़ेगा, मुझे एक फॉल्स कैश लेटर बनाना पड़ेगा, इट्स अ लॉट ऑफ वर्क दैट आई नीड टू डू बिकॉज एवरीथिंग इज लिंक्ड विद द यूनिवर्सिटी एट द एंड ऑफ द डे। सो इस स्कैम में आई डोंट हैव दैट मच टाइम टू बी ऑनेस्ट, एंड प्लस ये कि क्योंकि मेरी अपनी ब्रिटिश काउंसिल की सर्टिफिकेशन है, मेरा अपना 8 साल का एक्सपीरियंस है इस पूरे काम में, आई एम नॉट जस्ट रनिंग दिस बिजनेस कि मैंने कल सोचा कि आज मैं इसको कर लूं तो मैंने सोचा आज मैं कंसल्टेंट बन जाती हूँ। देयर इज अ लॉट ऑफ एफर्ट दैट गोस इनटू दिस, देयर इज अ लॉट ऑफ रिसर्च दैट आई हैव डन ओवर द इयर्स, देयर इज अ लॉट ऑफ पर्सनल एंड सक्सेस स्टोरीज दैट आई कोच टू देम टू कन्वर्ट देम, टू टेल देम दैट दिस इज व्हाट आई डू, दिस इज व्हाट आई हैव बीन डूइंग फॉर सम टाइम, और यू नो यू कैन फाइंड मी हियर। मैं कोई आज दफ्तर खोल के कल बंद तो करने वाला बंदा नहीं ना हूँ, ऑफ कोर्स आई हैव इन्वेस्टेड इन समथिंग, आई एम प्रीटी सीरियस अबाउट दिस। अच्छा, मुझे अभी तक जितना मैंने नोटिस किया है मुझे जेन्युइनिटी इश्यूज नहीं आया है राबिया, अल्हम्दुलिल्लाह। लाइक ऐसा मुझे कभी लोगों ने कहा है कि आप कोई स्कैम करेंगी, ये कोई ऐसा तो नहीं है, अगर होता भी है तो वो किसी और कंट्रीज, यानी किसी और कंट्री के लिए किसी और सिटी से अगर आएंगे ना पाकिस्तान की, और जिन्होंने मुझे कभी देखा नहीं होगा या जिन्होंने अभी कभी मेरे साथ काम नहीं किया होगा, तो फिर तो वो समझ आती है कि दे आर डूइंग दिस। बट क्योंकि अभी तक मेरे पास ज्यादातर केसेस रेफरेंसेस पर ही आ रहे हैं, रेफरल्स हैं ज्यादातर, तो उनको वो वाला ट्रस्ट इशू नहीं है मेरे साथ। बट यस, बिकॉज आई एम थिंकिंग अबाउट एक्सपैंडिंग, तो कल को हम वैसे वाली कॉल्स भी लेंगे जहाँ पे हम पहली दफा किसी से जिसको हम पहली दफा देखेंगे मिलेंगे, तो मे भी तब मुझे सवाल ज्यादा किया जाए कि आप हमारे पैसे तो नहीं। अच्छा हाँ, एक चीज है, वैसे भी मोस्टली जो आपके पास आते हैं वो रेफरेंस के थ्रू भी आते हैं, कुछ इस वजह से भी जो है वो आपका ट्रस्ट जो है वो बिल्ड होता रहता है। बिल्ड हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक और चीज है कि मैं ट्रस्ट को गेन इस तरह से भी करती हूँ, इफ समबडी रियली हैज ट्रस्ट इश्यूज तो मैं उनको कहती हूँ देखो मैंने आपसे क्या चार्ज करना है, आई जस्ट हैव टू चार्ज माय कंसल्टेंसी फी, ठीक है? चलो मैं कहती हूँ मैंने अगर कोई बहुत बड़ा स्कैम कर भी लिया तो कंसल्टेंसी फी इज अंडर 100K, ठीक है? मेरे 80,000 कंसल्टेंसी चार्ज करती हूँ। अगर कोई बहुत बच्चा ऐसा है जो कि रसल ग्रुप में जाना चाह रहा है, मैं 110K चार्ज कर लेती हूँ। मैं उनसे कहती हूँ आपका जा क्या रहा है, देखो आई एम नॉट गोइंग टू टेक योर ट्यूशन फी, आपने ट्यूशन फी पे खुद कर ली है, I am not going to be responsible for any of your expenses. I am not going to let you make your bank statement through me. I am not taking care of any of your financials. That's not my job. My job is to actually guide you and get you to the point where you are supposed to be. Finances का ध्यान रखना आपका काम है. So I am not, देखो जो पैसा इन्वॉल्व ही नहीं है तो मैंने आपका स्कैम करना ही क्या है? ये मैं आपको अपने रेफरेंस के लिए आपकी बात को सेकंड करने के लिए बता रही हूँ कि अब ये भी कल भी मैं एक स्टूडेंट से बात करी थी, हालांकि उसको कोई स्कैमिंग इशू नहीं था, उसको ये था कि पता नहीं मुझे अभी जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो मैंने उसको कल भी एग्जाम्पल दी, मैंने कहा व्हाट इज देयर टू लूज, यू जस्ट हैव टू पे माय कंसल्टेंसी फी, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग टू द यूनिवर्सिटी अनलेस यू आर नॉट श्योर, राइट? तो हम बहुत ज्यादा पैसे को इन्वॉल्व तब तक करते ही नहीं है जब तक कि स्टूडेंट, क्योंकि पैसे भी सारे क्रेडिबिलिटी डाउट्स आते हैं ना, तो जब वो नहीं इतना ज्यादा इन्वॉल्व, और देखो इफ यू इवन स्टार्टिंग ऑफ समथिंग यू हैव टू ट्रस्ट समबडी, इफ यू आर नॉट ट्रस्टिंग समबडी देन ऑफ कोर्स यू कैन गेट स्कैम्ड एज वेल। एग्जैक्टली ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो कोई चैलेंजेस आपके मतलब आप जो फेस कर रही हो, जो हार्डेस्ट पार्ट जो आपका यूनिस कनेक्ट में जो है वो अब काम करते हुए आपको जो सबसे हार्डेस्ट पार्ट लगता हो वो क्या है? यूनिस कनेक्ट में काम करते हुए डू यू वांट टू नो एज टू व्हाट challenges I'm facing What challenges are you faced, जी? as a business owner or as somebody who's running a business, यानी ये दो अलग चीजें हैं। मतलब For example, जी, आप जो है वो मतलब जब से आपने यूनिस कनेक्ट को जो है वो रन कर रही हैं तब से आपको जो है वो कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं, और उसमें सबसे हार्डेस्ट जो है वो चैलेंज आपके लिए कौन सा रहा है?
आई थिंक राबिया जो हार्डेस्ट है वो ये है कि we get to the point where we understand कि हम लीड्स को कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी आई नो कि मैं अपने सेशन के साथ उनको कन्वर्ट कर सकती हूँ, बट आई थिंक वी बीन स्ट्रगलिंग टू गेट क्वालिटी लीड्स। ये मेरा सबसे बड़ा चैलेंज रहा है। मैंने कुछ एड कैंपेन स्टार्ट किए हैं, बट आई हैव नॉट बीन वेरी सक्सेसफुल इन गेटिंग द टाइप ऑफ लीड्स दैट आई रियली वांट। यानी मेरा फोकस अलग है, मेरा फोकस और टारगेट अलग है, ठीक है, और मुझे पता है कि हमें वहां से कन्वर्जन आ सकते हैं, देयर इज अ ह्यूज स्कोप देयर, बट वी डोंट गेट द लीड्स। That's a biggest challenge for me because conversion की स्टेट पे तो हम तब आएंगे ना जब हमें लीड्स अच्छी मिलेंगी, ठीक है। मुझे लगता है कि अभी तक हमारे काम में जो वाइड स्प्रेड है ना वो ये है कि एक तो लीड्स वाली जो चीज है ना वो हम थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग द लीड्स दैट वी रियली लुक फॉरवर्ड टू। दूसरी चीज मुझे लगती है कि हैज बीन अ चैलेंज फॉर मी for this long, वो यही है कि I am trying to actually look for people, और आप कह सकते हो कि अपना यानी at the moment because I'm also looking after this business, तो I feel like I multitask a lot and sometimes उस चीज में आपका कुछ ऐसे important चीजें होते हैं जो कि आपको ना फिर देनी पड़ती हैं, आपको डेलीगेट करनी पड़ती है because if you have to do everything yourself तो फिर of course you don't have time for everything, ठीक है। ये बहुत बड़ा चैलेंज आता है कि in terms of thinking about who to actually include in your team and then trusting them to start doing the business, क्योंकि मेरा जो विजन है वो समझाना और उसको वैसे लेकर चलाना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है because I do not work like everybody else. So ये एक मुझे लगता है कि ये ओवर टाइम ही लोगों को समझ आती है और फिर उन्हें लगता है कि okay yes this is what she is really looking after and I think that is much it when it comes to challenges. गोल, आपका गोल क्या है? मतलब आप अगर मतलब कोई भी मार्केटिंग की सर्विसेज आप हमसे ले रही हैं तो उसमें आपका क्या गोल होगा कि आप कितनी देर तक जो है वो यहाँ तक जो है वो पहुंच जाएं? उसमें सबसे मेन जो आपका पॉइंट है कि जो आप हमसे चाह रही हैं कि क्वालिटी ऑफ लीड्स जो है वो आप चाह रही हैं, या आप अपने वेबसाइट को जो है वो जितना ज्यादा हो सके, क्योंकि आप कह रही हैं कि मोस्टली जो है वो रेफरेंस के थ्रू ही आते हैं, तो आप क्या चाह रही हैं कि अब वेबसाइट के थ्रू जो है वो आपको लीड्स ज्यादा से ज्यादा हो और आपको वेबसाइट के थ्रू ऑर्डर्स जो है वो आए, या कोई और जो है वो आपका गोल है कि आपका यूनिस कनेक्ट में जो है ये चीज ज्यादा होनी चाहिए? अच्छा देखो राबिया, मेरा इमीडिएट गोल तो ये है, हमारे होते हैं इनटेक्स, ठीक है। इनटेक से मुराद होती है कि हमारा पहला इनटेक, जैसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो तो आपको पता होता है कि सितंबर में यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो जाएगी, तो आपने इस टाइम तक यूनिवर्सिटी के एडमिशन कंप्लीट करना है, जैसे पाकिस्तान में होता है बिल्कुल ऐसे हमारे इनटेक्स होते हैं। तो मेरा इमीडिएट गोल जो मेरा इस वक्त का ऑनगोइंग इनटेक है उस पर तो सबसे पहला गोल मेरा ये है कि वी नीड टू प्रोड्यूस द मैक्सिमम नंबर्स फॉर दिस ईयर, ठीक है। सो द नंबर दैट आई एम रियली लुकिंग आफ्टर इज बिटवीन 25 to 30 स्टूडेंट्स, ठीक है। ये मेरा इमीडिएट गोल है एंड फॉर दैट आई ओनली हैव अबाउट 2 months। सॉरी, पर ईयर 30 स्टूडेंट्स? नहीं ये तो सिर्फ इस साल के बता, ये मैं कह रही हूँ इमीडिएट गोल है मेरा। यानी मेरा अभी इमीडिएट गोल ये है कि अभी हम हैं सितंबर 2025 में, ठीक है। यानी सितंबर 2025 से मुराद मेरी ये है कि हमारा जो इनटेक चल रहा है इस वक्त वो है सितंबर 2025, ठीक हो गया। अब इस इनटेक में क्योंकि ऑब्वियसली हमारा ये टेक्निकली हमारा यूनिस कनेक्ट का ये सेकेंड इनटेक होगा, बट यानी अब हम इसको लॉजिस्टिक्स वाली चीजों को थोड़ा सा पीछे छोड़ दें तो मे बी दिस इज समथिंग दैट वी आर प्लानिंग एज आवर टोटल, आप कह सकते हैं 1.5 year हो गया है यूनिस कनेक्ट को विद इंसेप्शन एंड एवरीथिंग इंक्लूडेड। सो हम इस हैं कि हमारा जो टारगेट है ना, आई वुड शुड बी रीचिंग अबाउट 30 स्टूडेंट्स, दैट्स द मिनिमम। यानी ये 30 स्टूडेंट्स से मेरा मेरी है वो कन्वर्टेड स्टूडेंट्स जो कि यूनिवर्सिटीज में साथ एनरोल करेंगे। ये है मेरा इमीडिएट गोल फॉर यूनिस कनेक्ट फॉर दिस ईयर, ये इमीडिएट है। बट व्हेन इट कम्स टू, और अच्छा दूसरे मेरे लॉजिस्टिक्स वाइज मैं ये चाहती हूँ कि हमारी वेबसाइट रनिंग पोजीशन में, एंड आई शुड बी इन द पोजीशन जहाँ पे हम स्टूडेंट्स को यानी पीपल कैन एक्चुअली व्यू अस ऑनलाइन, हमारे पास वेबसाइट का एक लैंडिंग पेज बड़ा जबरदस्त किस्म का, वो स्टूडेंट्स कैन एक्चुअली फिल आउट फॉर्म्स देयर, वी कैन गेट इन टच विद देम। तो हम सिमिलरली जैसे अभी बहुत सारे लोग करते हैं, ये तो हम भी अभी कर रहे हैं, मैं नहीं चाहती कि हम सिर्फ एड कैंपेन्स पर रिलाई करें, आई वांट अदर मीडियम्स एज वेल, ठीक है। तो जिसमें हमारे वेबसाइट पूरी फंक्शनल कंडीशन हो, ये भी मेरा एक इमीडिएट गोल है। आई वांट अ फुल फ्लेज्ड रनिंग वेबसाइट जिसमें हम हमारी बड़ा जबरदस्त एक लैंडिंग पेज हो, एक ही पेज हो चाहे, आई डोंट वांट कि मेरे को बहुत ज्यादा उस पर बहुत सारी चीजें इंक्लूड करने की जरूरत है, बट वांट कि वहाँ पे हमारी एक लैंडिंग पेज हो जिसमें हर चीज क्लियरली मेंशन हो, हमारी सक्सेस स्टोरीज हो, वो अच्छे से मैनेज्ड हो, वो अच्छे से चल रही हो, उसके सारे फॉर्म्स लीड करते हो हमारे अपने डेटाबेस को, और हमारे पास सारा एक ऑटोमेटेड सिस्टम हो, ठीक है।
अच्छा, when I talk about the vision for Unis Connect, the vision is bigger. I would want कि ये तो हमारा फर्स्ट ईयर यानी इस साल का फर्स्ट ईयर नहीं कह सकते, बट इस साल का हमारा टारगेट है कि we want to reach this much. But for the next year, I would want the number to increase maybe 100 or something. क्योंकि हमारे पास फिर आएंगे Jan intake के बाद हमारा May intake के बाद हमारा September intake. तो हमारे पास intakes हैं जहाँ पर हम स्टूडेंट्स को cater भी कर सकते हैं, उनकी needs को उनको facilitate भी कर सकते हैं. Of course, we can onboard many students there. So the next year obviously should be bigger and better when it comes to a brand awareness. और बल्कि अभी तो मेरा immediate goal ये भी है कि हमारे मुझे तो अभी थोड़े से problem Google Maps में भी आ रही है. So I really need to fix that problem as well because students can't locate me and my organization. So हमारा SEO भी होने वाला है. ये भी मुझे मेरा immediate goal है that I want to do. So basically मैं इस साल चाहती हूँ कि हम जितने भी हमारे errors है ना जो हमें भी पता है कि हैं rectify करें. ठीक है, हम सारी चीज और एंड आई वांट जो आप लोगों की सर्विसेज में मैं इंटरेस्टेड हूँ वो यही है कि आप लोग मुझे एक ऐसा स्ट्रीमलाइंड प्लान दो कम टाइम में जहाँ पे मैं अपने गोल्स को अचीव कर सकूं. ठीक है, एंड वी नो एंड वी हैव अ स्ट्रेटजी. क्योंकि देखो हमारे काम में ना ये नहीं होता कि हमने बस कुछ भी सोचा पोस्ट कर दिया. इट हैज टू बी वेल रिसर्च्ड वर्क. इट हैज टू बी वेल आउट कंटेंट जो कि आप पोस्ट में लगाओगे. कोई वीडियोस अगर डाल रहे हो तो एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे हम कॉपीराइट्स भी होते हैं ना. हम ये नहीं कर सकते कि हमारी यूनिवर्सिटी को कॉपी करते हैं. हम हिडन जो मर्जी करें. एंड ऑफ कोर्स इफ वी हैव स्टूडेंट्स जो कि एलएससी में लेट्स सपोज जाना चाह रहे हैं वो वी कैन मार्केट इट that way. Okay, we have to be strategically when it comes to marketing on social media platforms. So ये सारी चीजें हैं जो कि मैं चाह रही हूँ कि हमारे जो बेबी स्टेप्स है ना वो कंप्लीट हो गए. जैसे बेबी स्टेप्स कंप्लीट है, we've started walking. ठीक है, I want we should start running now, and for the next year I should be taking a flight. That's my immediate goal. So is there a competitor of your organization जो कि आपके यूनिस कनेक्ट की तरह जो है वो बिल्कुल जिस तरह से आपका गोल है या आपके मतलब कंपेटिटर्स कोई आपने जो है वो शॉर्टलिस्ट किए हों कि आपकी तरह ही सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, या फिर आप जो चाहती हो कि हमें इनसे भी जो है वो बेस्ट सर्विसेज देनी चाहिए, वो मुझे बताइएगा अगर आपने कोई शॉर्टलिस्ट किए हैं तो. कंपेटिटर्स तो बहुत हैं राबिया. मतलब अगर आप खुद भी ऑनलाइन जाके देखोगे तो सिर्फ कंसल्टेंट होगी तो आपको हजारों कंसल्टेंट्स नजर आ जाएंगे. अब ऑब्वियसली कुछ इंडस्ट्रीज हैं जिसमें हम कहते हैं कि बहुत ही ज्यादा लोग काम कर रहे हैं. ठीक है, देयर आर फ्यू पीपल जिनके साथ मैं खुद भी काम करती हूँ. यानी व्हेन इट कम्स टू माय स्टूडेंट बॉडी मैं उनको ट्रस्ट करती हूँ बिकॉज आई हैव डेवलप्ड दैट ट्रस्ट विद रिगार्ड्स टू student for years. ठीक है, मैं ऐसे नहीं कि आज because they're offering me a handsome deal तो मैंने सोचा कि नहीं चलो let's just start working with them. No, it's just about facilitating the student to the maximum I can. ठीक है, I know as a matter of fact कि हमारे इस इंडस्ट्री में कुछ लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और बहुत सालों से काम कर रहे हैं. they're renowned names. ठीक है, उनको बहुत साल हो गए हैं, पूरी जिंदगी इस काम को देती हैं अपनी. राइट, सो ऑफ कोर्स वी हैव दोज पीपल जो काम कर रहे हैं इस चीज को भी देख रहे हैं. बट आई ऑल्सो सी देयर इज अ ह्यूज गैप इन द मार्केट एज वेल. ठीक है, जहाँ पे एड कैंपेन जो सब लोग रन कर रहे हैं, बट अगर हम कुछ अलग से करते हैं जो कि लोगों का अटेंशन ग्रैब करेगा, जो कि अच्छी ऑडियंस तक जाएगा, तो ऑटोमेटिकली I don't see any point for us to be behind. I see it going forward. क्योंकि अगर हमारी strategy बिल्कुल ठीक हो तो फिर there is no point for us to actually be behind. लेकिन when it comes to competitors आपके पास बहुत सारे नाम है. अगर of course if we sign up और हम आगे इसको continue करते हैं then longer run मैं आपको एक list भी दे सकती हूँ जहाँ पे you check them out, you can see them for yourself कि वो कैसे मार्केट कर रहे हैं, वो क्या मार्केट कर रहे हैं, कुछ बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं. Then आप वो जो competitors की लिस्ट होगी आप वो हमें ग्रुप में ही शेयर कर दीजिएगा. ठीक है, ठीक है, तो हम उसको भी जो है वो एक दफा चेक कर लेंगे. और मुझे ये बताइएगा कि आपकी कोई मतलब ऐसी सक्सेस स्टोरी है किसी क्लाइंट की जो कि बहुत अच्छी जो है वो उसके लिए गुजरी हो और उसने आपको एक फीडबैक दिया हो. Oh, many. Alhamdulillah, हम थोड़े clients के साथ भी काम करें तो भी there have been many students. If you want me to quote one or two, तो मैं एक
बता देती हूँ कि 2023 में एक स्टूडेंट बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में मैंने भेजा था. He was a student who actually approached me when I was working for another organization. यानी back then of course I didn't have Unis Connect, लेकिन मैं उस स्टूडेंट को जानती थी, and he was my student when I was working with him. तो I remember he was the one who said कि मुझे मैं 2 साल से CSS ट्राई कर रहा हूँ, and I think it's not working out for me, but I have family pressure because मेरी family सारी bureaucrats की है, and you know it's something that I have to do eventually. तो मैंने उसको उस वक्त एक road map दिया था. He stayed in touch with me for 2 years. और मैंने उसको दिया था, मैंने कहा देखो ट्राई कर लो, take your chance, put a plan B, ठीक है, and if you feel like you want to continue तो फिर करे रहना, if you feel like you don't want to तो ना जाना, कोई मसले की बात नहीं, stay here, defer करा लेना offer, at least take your chance. So he took my advice and we looked for options for him. हमने सारी अच्छी options को target किया. He was able to get into one of the best schools in the UK, in London, which is if I have to name it, it's King's College London. तो अब इस साल माशाल्लाह graduate हो गया. तो he messaged me and अच्छा मेरे साथ वैसे भी बीच में टच रहा है काफी, तो he messaged me and he actually said अभी हम you know this is something that we've actually started marketing as well, और उसमें उसके comments ये थे, he would actually every time whenever he'd come and he would bring me a cake or you know to celebrate everything जब उसका वीजा भी लग गया था. तो he was the one who now is यानी आपको sponsor jobs बहुत मुश्किल मिलती है UK में. Of course you have to strive for this, of course you have to work hard for this one. So he was able to get a job right after graduation, and he's really happy there. He really understands, he really cracks the entire curriculum. जो उनका जो market है उसको उसने बहुत अच्छे तरीके से crack कर लिया. He understands it really well and he's really happy with the decision that he's made. He was also one of my those students जिसने मुझे एक और student refer किया, वो इस साल मैंने भेजा, like September 2024 में वो गया है. It was his friend जो कि उसने मुझे रेफर किया था, and he did not even ask me anything कि आप कितना चार्ज करिए नहीं चार्ज करिए, whatever it is. He said whatever it is, we have a good recommendation for you, let's just continue. So this one of the success stories that I of course am very proud of, alhamdulillah. इसी तरह से एक और मेरा स्टूडेंट जो मैंने अभी अगर यूनिस के भी प्लेटफॉर्म से बात करूँ तो एक तो मैंने आपको बता दिया कि जो सक्सेस स्टोरी थी कि while I had nothing, तो मैंने एक स्टूडेंट को रिक्रूट कर दिया था फरवरी इनटेक के लिए. उसके एक स्टूडेंट को मैंने मई इनटेक के लिए रिक्रूट किया था. बनी मई इनटेक में रिक्रूट करना बड़ा हार्ड भी होता है क्योंकि आपके पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस होती हैं, तो यू हैव टू नो सॉर्ट ऑफ टेक केयर. तो वो भी मैंने एक स्टूडेंट रिक्रूट कर लिया था. फिर आई रिमेंबर वन ऑफ माय अदर स्टूडेंट्स जो कि एक और यूनिवर्सिटी में गए थे, एंड दे एक्चुअली अच्छा ये मेरे वो एक दो वो स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने मुझे खुद कहा था कि आप अपना क्यों नहीं कुछ स्टार्ट करते हैं, व्हाई डोंट यू डू समथिंग ऑफ योर ओन. सो यस अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस स्टोरीज हैव बीन देयर. जब स्टूडेंट्स हमें ये बताते हैं कि दे आर रियली हैप्पी, दैट दे आर डूइंग वेल, दैट दे हैव you know gathered a scholarship. उसने मुझे वहां जाके बताया कि मुझे 30% स्कॉलरशिप जो आपने दिलाई मेरी अपनी यूनिवर्सिटी में, बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि आप तुम पता नहीं कैसे आ गए हो इस यूनिवर्सिटी में, you know otherwise it's the minimum you have to pay and you still have a pretty good decent scholarship that you have with you. So yes, alhamdulillah success stories develop अभी तो बहुत हो रही है राबिया, अभी तो ऐसे नेम कर सकती हूँ, but I want कि इतनी सारी हो कि हम भूल जाएं कि और ये सक्सेस स्टोरीज जो है वो जितनी सुनते हैं उतना ज्यादा जो है वो खुशी होती है और दिल करता है कि ये चीज बस जो हम काम कर रहे हैं इसको और अच्छा बनाएं ताकि इससे जो है वो क्लाइंट्स और जो है वो हैप्पी होके हमसे जो है वो चले. मुझे जो जितना कुछ भी आपने बताया बहुत जो है वो अच्छी तरह आपने मुझे अपने बिजनेस के बारे में बताया है, और ये ऑलमोस्ट आधे घंटे से भी ज्यादा की हो गई ये मीटिंग. या तो मैक्सिमम जो है वो मोस्टली क्लाइंट्स होते हैं जो कि 20 to 30 मिनट्स की देख के अपने बिजनेस के बारे में बता के तो जस्ट मतलब वो होता है ना कि एक काम किया और जस्ट बस हो गई मीटिंग. तो बट आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा, और आपके बिजनेस को जो है वो मैंने जितना देखा है आपसे सुना है बहुत अच्छा लगा, और आपकी सर्विसेज जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो सब. तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. आपने मुझे इतना टाइम दिया, आपने बिजनेस के जो है वो बताया. तो अब ये है कि नेक्स्ट जो है वो मैं ये सब अपने स्ट्रेटेजी मीटिंग के लिए जो है वो आके दे दूंगी अपनी टीम को, ठीक है. तो उसमें वो भी आपको जो है वो एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना के देंगी, और उसमें जो है वो इससे ज्यादा थोड़ा सा टाइम मतलब वो मैक्सिमम जो है वो स्ट्रेटजी मीटिंग होती है 1 आवर या मैक्सिमम के लिए 1.5
और की होती है, ठीक है। तो ये होगा उसमें कि अभी आप जो है वो ज्यादातर आपने जो है वो हमें अपने बिजनेस के बारे में बताया है। नेक्स्ट मीटिंग में आपको हम बताएंगे कि हम आपके बिजनेस में क्या कर सकते हैं, ठीक है। और फिर आप जो है वो हमारी बात सुनेंगी कि हम आपको कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। लुकिंग फॉर, तो बिल्कुल ठीक है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इट्स इंशाल्लाह, गोइंग टू बी ठीक द अदर वे अराउंड। आज मैं बहुत बोली हूँ, है। जी नेक्स्ट जी हम आप। जी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बस नेक्स्ट जो है वो फिर हम आपको अपनी सुनाएंगे कि हम आपको क्या प्रोवाइड कर सकते हैं। No, if it चलो। actually works out and if you people have really good things to offer, I am that sort of a person who would actually consider it. क्योंकि मैंने शायद आपको पहले भी बताया था, मैं बहुत ट्रांसपेरेंटली बता देती हूँ तो ये बात है कि we don't waste each other's time. But मेरे पास ऑलरेडी मार्केटिंग टीम है जो कि मेरा कुछ पार्ट ऑफ मार्केटिंग they look after. But of course, there are certain areas that they don't cover, and for those areas, of course, we're really looking forward to upbringing it, skilling it up, looking forward to providing solutions for you we can. ठीक है. It was lovely meeting to you. It was lovely having a meeting with you as well, Rabia, and thank you so much, Amna, for this one. थैंक यू मिस And आमना। हाँ जी जी, मैं अब ये है कि वहाँ पे जो मिस मिनाहिल हैं जो आपको स्ट्रेटेजी मीटिंग बना के देंगी, उनको मैं इंट्रोड्यूस भी करवा दूंगी उस ग्रुप में। तो आप कंपेटिटर्स की जो लिस्ट है वो आप मुझे वहीं पे शेयर कर दीजिएगा। उसके अलावा कुछ और भी अगर आप शेयर करना चाह रही हो जो कि आपको लगता हो कि हमें शेयर करनी चाहिए, इससे बेहतर स्ट्रेटेजी बन सकती है, तो आप वो भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। okay, done. चलो चलो, ठीक हो गया। थैंक यू सो मच मिस आमना, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज। That's it.